اسٹڈی پوائنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے آج کا کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج دیکھیں گے ماہرین نفسیات کے جو نظریات ہیں زبان کے تعلق سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے نظریات دیکھتے ہیں، پاولو اور اسکینر کے نظریات دیکھتے ہیں۔ ان کے نظریات کیا ہیں زبان کے تعلق سے؟ تو ان کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اور جواب کے درمیان تعلق ہے، جو کہ مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ زبان کا سیکھنا محض کیا ہے، محرک ہے، پروتساہن ہے اور جواب کے درمیان تعلق ہے، جو کہ مشق اور نقل اور رٹنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کے مطابق جو زبان ہے اسے محض ہم کیا کرتے ہیں، رٹتے ہیں۔ بچے کیا کرتے ہیں، رٹتے ہیں اور نقل کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان کو سنتا ہے، پھر اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، چیزوں اور ان کے نام کے بیچ رشتہ جوڑتا ہے اور اس نتیجہ میں کیا کرتا ہے، نتیجہ میں وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ یعنی بچہ اپنے ماحول کی زبان کو جو سنتا ہے، پھر اس زبان کو سننے کے بعد اسے دہرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کرتا ہے، اپنا لگاؤ لگاتا ہے، پھر اس نتیجہ میں جا کر کیا کرتا ہے، وہ زبان سیکھ لیتا ہے۔ یہ کس کے نظریات ہیں؟ یہ پاولو اور اسکینر کے نظریات ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ماحصل اس کا نتیجہ کیا ہے۔ پاولو اور اسکینر کا ماننا ہے کہ بچے زبان کی مشق، نقل اور رٹنے سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی بچے زبان ان کے نزدیک کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں؟ تو محض کیا ہے، نقل اور رٹنے کے ذریعے بچے کیا ہیں کہ زبان سیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ کس کا ہو گیا؟ پاولو اور اسکینر کا نظریہ ہے کہ بچے زبان رٹنے سے سیکھتے ہیں، نقل کے ذریعے سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب ہیں نوم چومسکی۔ نوم چومسکی کے مطابق ان کے نظریات کیا ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو نوم چومسکی کے مطابق بچے میں زبان کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ ان کے نظریہ کیا ہے کہ بچے میں جو زبان سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ پیدائشی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کے آتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے دماغ میں کیا ہے، ایک خاص عضو، ایک خاص آلہ لے کے آتا ہے، ایک خاص ڈیوائس لے کے آتا ہے۔ یہ کن کا ماننا ہے؟ یہ نوم چومسکی کا ماننا ہے، جسے کیا کہتے ہیں، LAD یعنی لینگویج ایکوائزیشن ڈیوائس کہتے ہیں، یعنی زبان سیکھنے کا آلہ۔ اب دیکھیں، زبان سیکھنے کی بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یعنی جو بچے زبان سیکھتے ہیں تو یہ صلاحیت بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں، یہ نوم چومسکی کا ماننا ہے۔ اب دیکھیں، پیدائش کے بعد جب بچہ اپنے ماحول میں بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو اس کی زبان سیکھنے کی فطری صلاحیتیں متحرک ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بچے ماحول میں بولی جانے والی جو زبان ہے اس کو سنتے ہیں، پھر اس زبان کے سیکھنے کی فطری صلاحیت متحرک ہو جاتی ہے۔ وہ زبان سن کر نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے وہ، اور کچھ عرصہ بعد کیا ہوتا ہے، کچھ عرصہ میں بچہ کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور اس کی ساخت کو سمجھنے لگتا ہے اور بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کچھ عرصہ کے بعد کیا ہوتا ہے، بچہ کا دماغ بولی جانے والی پیچیدگی اور اس کی ساخت یعنی اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی بناوٹ کو کیا کرتا ہے، بچے سمجھنے لگتے ہیں اور پھر بچہ کیا کرتا ہے، زبان بولنے لگتا ہے۔ تو ان کے مطابق یہ ہے کہ بچے کے اندر زبان سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدائشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
اور پاولو اور اسکینر کے نظریہ کیا تھا کہ بچے زبان کس کے ذریعے سیکھتے ہیں؟ تو رٹنے سے، نقل کے ذریعے، مشق کے ذریعے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بتا بھی دیا گیا کہ نوم چومسکی کے نظریہ کیا ہے کہ بچے کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پیدائشی صلاحیت ہوتی ہے سیکھنے کی. اب آگے دیکھیں، اب جین پیاجے کا نظریہ دیکھتے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے، یہ کہہ رہے ہیں پیاجے کا ماننا ہے کہ زبان دیگر وفاقی نظاموں کی طرح گرد و پیش کے ساتھ تعامل کے نتیجہ میں نشو و نما پاتی ہے. وفاقی نظام مطلب فیڈرل سسٹم کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی زبان کس طرح سیکھتے ہیں بچے؟ گرد و پیش کے جو تعاملات ہے، جو میل جول ہے، اس کے نتیجہ میں کیا ہوتا ہے؟ زبان نشو و نما پاتی ہے، زبان ڈیولپ کرتا ہے. پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے جس کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعے، حواس خمسہ کتنے ہیں؟ خمسہ مطلب تو 5 ہوتا ہے، تو حواس خمسہ 5 ہے. ٹھیک ہے، حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے اور اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن کے ذریعہ اسکیما بناتا ہے. اب اسیمیلیشن کس کو کہتے ہیں؟ تو اسیمیلیشن کہتے ہیں جب کسی پہلے والی چیز میں کوئی نئی چیز کو جوڑ دیا جائے، یعنی پر گیان کو نئی گیان میں جوڑ دیا جائے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسیمیلیشن. اور اکوموڈیشن کہتے ہیں کسی نئی نالج کے مطابق کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھال لینا، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اکوموڈیشن. یعنی بچہ، جیسے ایک بچہ کتا دیکھتا ہے تو ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں یہ کیا ہے؟ تو ماں کہتی ہے یہ کتا ہے. تو بچے کے اندر ایک 4 پیر والے جانور کا نقش دماغ میں آ گیا. جب بعد میں وہ کیا دیکھتا ہے؟ گائے کو دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ یہ کتا ہے. تو ماں نے کیا کہا کہ یہ کتا نہیں بلکہ گائے ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ کسی نئی نالج کے مطابق کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یعنی بچے کو یہ پہلے اس کے دماغ میں یہ نقش بیٹھ گیا تھا کہ 4 پیر والے جو بھی ہے وہ سب کتا ہے، لیکن بعد میں اسے پتہ چلا کہ نہیں، 4 پیر والے ہر چیز کتا نہیں ہے، ہر جانور کتا نہیں ہے. تو اس نے کیا سمجھا؟ نئی نالج کو میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ ڈھال لیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیں، تو ان کے نتیجہ میں کیا آپ ان کے نظریات کیا سمجھے آپ؟ کہ سماجی تعاملات میل جول کے ذریعے زبان نشو و نما پاتی ہے. اب دیکھیں، وائیگوٹسکی کے مطابق زبان کی نشو و نما کے دوران بچے 2 طرح کی بولی بولتا ہے. کیا بھائی؟ وائیگوٹسکی کے مطابق بچے زبان کی نشو و نما کے دوران، جب بچے زبان سیکھتے ہیں اس کے دوران بچے کس طرح کی بولی بولتے ہیں؟ 2 طرح کی بولی بولتے ہیں. ایک انا پرست ایگو سینٹرکس اور دوسری سوشل یعنی سماجی. ٹھیک ہے، کس طرح کے 2 طرح کے زبان بولتے 2 طرح کی بولی بولتا ہے بچہ؟ ایک انا پرست اور دوسری سماجی. انا پرست زبان کا استعمال وہ خود کو مخاطب کرنے کے لیے کرتا ہے. انا پرست کا جو استعمال کرتا ہے زبان کا، وہ خود کو اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے کرتا ہے. اور سماجی زبان کا استعمال کرنے کے لیے کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے کرتا ہے. تو 2 طرح کی بولی بچہ بولتا ہے زبان سیکھنے کے مطابق زبان کی نشو و نما کے دوران. ایک انا پرست اور دوسرا سماجی. انا پرست اپنے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے کرتا ہے اور سماجی زبان جو ہے وہ دوسروں کو مخاطب کرنے کے لیے بولتا ہے. اب دیکھیں، وائیگوٹسکی کے مطابق زبان سماجی رابطہ کا نتیجہ ہے. یعنی زبان کس چیز کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں؟ سماج کے ذریعے. اب دیکھیں، وائیگوٹسکی نے انسانی ثقافت اور حیاتی سماجی نشو و نما کا نظریہ پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، وائیگوٹسکی کا نظریہ ہے کہ زبان سماجی رابطہ کا نتیجہ ہے.
माहसल ये है, वाइगोत्स्की के नज़दीक ज़बान किसके ज़रिए बच्चा सीखता है? तो समाजी राबता के ज़रिए सीखता है, समाजी तालमेल के ज़रिए सीखता है, समाजी तामुलात के ज़रिए बच्चा क्या करता है? सीखता है। इनके नज़दीक ज़बान समाजी राबता का नतीजा है, नज़रिया है। अब देखें, कुछ नज़रियात हैं, उसको भी देखना ज़रूरी है। देखते हैं साख्ती नज़रिया। साख्ती नज़रिया किसको कहते हैं भाई? साख्ती नज़रिया, इस नज़रिया में ज़बान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। क्या होता है? इस नज़रिया में ज़बान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। अब देखें, साख्त में अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील व तरतीब और कवायद का इल्म शामिल होता है। साख्त कहते ही बनावट को, शक्ल को और हैयत को। तो इस नज़रिया में साख्त को यानी बनावट और शक्ल और हैयत पर जोर दिया जाता है। जो बनावट में अल्फाज की तश्कील, जो शक्ल होते हैं, जो तरतीब होते हैं, जुमलों की जो शक्ल होती है और तरतीब होती है, और कवायद का इल्म इसमें शामिल है। तो इस नज़रिए में क्या है? साख्ती नज़रिया में क्या होता है कि ज़बान की शक्ल व सूरत, हैयत और उसकी शक्ल, उसकी तरतीब पर जोर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कवायद का भी इल्म शामिल होता है, ग्रामर का। अब देखें अमली नज़रिया। भाई अमली नज़रिया किसको कहते हैं? अमल काम से है, मतलब काम करके इसमें सीखते हैं। ये नज़रिया काम के ज़रिए ही है। अब देखें, अमली नज़रिया में ज़बान के इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, यानी तलबा मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल अमली मश्क के ज़रिए सीखते हैं। मसलन मज़मून निगारी, खुतूत नवेसी वगैरह। इसमें बच्चे क्या करते हैं? अमली नज़रिए में क्या होता है? ज़बान की इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है अमली नज़रिया में, इसमें करके बच्चे सीखते हैं। यानी तलबा मुख्तलिफ़ सूरत हाल में ज़बान का इस्तेमाल अमली यानी मश्क के ज़रिए, काम के ज़रिए सीखते हैं। अब मज़मून निगारी भी एक काम है, बच्चे लिखेंगे तभी तो एक अमल होगा, तभी तो एक काम होगा। उसी तरह खतूत नवेसी, लेटर लिखेंगे, ख़त लिखेंगे, तो ये सारे क्या हो गए? काम के ज़रिए हो रहे हैं। तो यही क्या हो जाएगा? अमली नज़रिया होगा। और इस नज़रिया को ज़्यादा अहमियत भी हासिल है कि काम के ज़रिए ही बच्चे इसमें ज़बान को सीखते हैं। आगे देखते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी करें दूसरों के पास, ताकि वो भी शामिल हो जाएं। चलिए, ये तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अब देखें तामुली नज़रिया, इंटरेक्टिव व्यू। क्या है? तामुली नज़रिया। तामुली नज़रिया कहते किसको हैं? अब इसको देखते हैं। तामुली नज़रिया में ज़बान को समाजी ताल्लुकात को बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। तामुली नज़रिया में क्या होता है? ज़बान को समाजी ताल्लुकात बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। यानी समाज में ज़बान को कायम रखने और बनाने का एक ज़रिया माना जाता है। यानी इस नज़रिया में बाहमी तबादले ख़याल में इस्तेमाल होने वाली ज़बान के नमूनों पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। यानी समाज में जिस तरह की हम बोलियाँ बोलते हैं, एक दूसरे से हम बाहमी ख़यालात करते हैं, एक दूसरे से आपसी मेल जुल रखते हैं, एक दूसरे से बातचीत कहते हैं, तो उस बातचीत में होने वाली जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उस ज़बान के नमूनों पर क्या करते हैं? ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ठीक है। अब देखें पहली ज़बान के मराहिल। क्या है भाई? पहली ज़बान के मराहिल, स्टेज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्वाइजेशन, यानी पहली ज़बान हासिल करने के कितने मराहिल हैं, किस किस मरहला से बच्चों को गुज़रना पड़ता है। तो देख लेते हैं। क्या है भाई? पहली ज़बान की तहसील के कुल 6 मराहिल है। यानी पहली ज़बान हासिल करने के लिए कुल कितना मरहला है? 6 मरहला है, 6 स्टेज है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके।
अब देखें, पहला क्या है, बोलने से कब्ल का मरहला, बोलने से पहले का मरहला, इसको कोइंग कहते हैं, यानी ये 0 से 6 माह तक ये मरहला होता है। उसके बाद है बबलिंग मरहला, बबलिंग मतलब बबलाना, बच्चे बबलाते हैं, और ये कब कितने तक का है, 6 से 8 माह तक, 6 से 8 महीने तक का ये मरहला है। ये सारी चीज़ को आपको याद रखना है और ध्यान में रखना है, तब आपको जो उर्दू पेडागोजी कराई जाएगी तब आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, एक लफ्ज़ का मरहला, ये कितने महीने तक है, 9 से 18 महीने तक ये एक लफ्ज़ का मरहला चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 अल्फाज का मरहला, क्या है, 2 अल्फाज का मरहला, ये 18 महीना से 24 महीना तक चलता है, ठीक है। उसके बाद है टेलीग्राफी मरहला, ये सारे के डिफिनेशन आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहले ये देख लें कब से कब तक रहता है। टेलीग्राफी मरहला ये 24 माह से 30 माह तक रहता है, ठीक है। इसका स्टेज कितना है, 24 माह से 30 माह। उसके बाद लंबे जुमलों का मरहला, ये 30 माह के ऊपर, जितना आप आगे जाएं जितना ज़्यादा, ठीक है। तो चलें एक एक करके सबको पढ़ते हैं और देखते हैं किसको क्या कहते हैं। अब देखें, बोलने से कब्ल का मरहला, जिसको कोइंग कहते हैं, ठीक है। बोलने से कब्ल का मरहला यानी पहले का मरहला, 6 हफ्ता के आसपास बच्चे कोइंग शुरू कर देते हैं, 6 हफ्ता के आसपास बच्चे कोइंग शुरू कर देते हैं। इब्तिदा में वो हुरूफ इल्लत की आवाज़ें निकालते हैं, बच्चे क्या करते हैं, हुरूफ इल्लत की आवाज़ें निकालते हैं शुरू में। 4 महीने के आसपास उन आवाज़ों में हुरूफ सही भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। 4 महीने के आसपास बच्चे में क्या होता है, बच्चे की आवाज़ में क्या होता है, हुरूफ सही भी जुड़ जाते हैं। और ये आवाज़ें किस तरह की सुनाई देती हैं, कोवो गोबू की तरह सुनाई देती है, मतलब इस तरह बच्चे क्या है बोलने लगते हैं, कुवू गोवू इस तरह करने लगते हैं बच्चे। तो ये बोलने से पहले का मरहला हुआ। अब देखें बबलिंग का मरहला, बबलिंग यानी बच्चे बबलाते हैं, वही मरहला है। 6 माह के आसपास बच्चे हुरूफ इल्लत और सही हुरूफ को मिलाकर दोहराने वाली आवाज़ें निकालते हैं। इस बबलिंग मरहला में क्या होता है कि 6 माह के आसपास बच्चे क्या करते हैं, हुरूफ इल्लत और सही हुरूफ को मिलाकर दोहराने वाली आवाज़ें निकालते हैं, जिसे बबलाना कहते हैं। जैसे बा बा दा दा, दादा दादा नहीं करते हैं बल्कि अलग अलग, दा द ना ना ना, मा, मतलब इस तरह की आवाज़ें बच्चे अलग अलग करके निकालने लगते हैं। एक साथ दादा मामा नहीं करते हैं बल्कि बा 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 इस तरह निकालते हैं। तो ये बबलिंग मरहला हो गया, ठीक है। अब देखें तीसरा क्या है भाई, तीसरा है एक लफ्ज़ का मरहला। तीसरा क्या है, एक लफ्ज़ का मरहला। तकरीबन 9 माह की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज़ बोलता है। क्या है, 9 माह की उम्र में बच्चा पहला लफ्ज़ बोलता है। तकरीबन 1 साल की उम्र में वह ऐसे बहुत से अल्फाज बोलने लगता है। बच्चे क्या करते हैं, 1 साल की उम्र में वह ऐसे बहुत सारे अल्फाज बोलने लगते हैं। इस मरहला में एक ही अल्फाज क्या है भाई, इस मरहला में एक अल्फाज ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है। यानी एक ही अल्फाज से बच्चे के भाषा को हम लोग यानी उसके गार्जियन उसके घर वाले समझ लेते हैं। यानी क्या कहते हैं बच्चे, मुझे पानी दे दो के बजाय बच्चा क्या कहता है, सिर्फ पानी या मम मम बोलता है। तो इस मरहला में बच्चा एक लफ्ज़ पर ही पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता है। यानी एक लफ्ज़ बोलकर ही पूरा चीज़ ही मांग लेता है बच्चा। क्या कर, यानी मुझे पानी दो के बजाय बच्चा क्या करता है, सिर्फ पानी चाहे मम मम इस तरह की आवाज़ें निकालता है और बोलता है, ठीक है। अब आगे देखें, उसके बाद है 2 अल्फाज का मरहला। क्या है, 2 अल्फाज का मरहला।
इस मरहला में बच्चे छोटे छोटे जुमला जो कि दो लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं बोलते हैं। ठीक है, बच्चे क्या है, छोटे छोटे जुमला जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं बच्चे बोलने लगते हैं। पहले जहाँ एक लफ्ज़ जैसे पानी पूरे जुमले की नुमाइंदगी करता था, यानी पहले क्या होता था, बच्चे सिर्फ पानी बोलते थे तो इसका मतलब ये हो जाता था कि बच्चे पानी मांग रहे हैं, पूरे जुमले की नुमाइंदगी सिर्फ पानी करता था। अब उसके साथ फेल भी जुड़ जाता है। क्या है, फेल भी जुड़ जाता है, यानी अब बच्चा क्या कहता है, पानी दे दो। पहले क्या कहता था, सिर्फ पानी, लेकिन एक अल्फाज के मरहला में बच्चा क्या करता था, सिर्फ पानी, लेकिन दो अल्फाज के मरहला में अब क्या कर रहा है, उसके साथ, उस जुमले के साथ उसके साथ एक फेल भी जोड़ जा रहा है, एक वर्ब, एक क्रिया भी जुड़ जा रहा है। अब बच्चा क्या कह रहा है, पानी दे दो। उसके पास तकरीबन 50 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। दो अल्फाज का मरहला जो होता है उसमें बच्चे के पास तकरीबन 50 लफ्ज़ों का मजमुआ होता है। उन लफ्ज़ों को बच्चा जोड़ी में इस्तेमाल करके अपना माफी ज़मीर अदा करता है, यानी अपनी बात को बच्चा इसको जोड़ी में अदा करता है इस्तेमाल करके, यानी पानी के बजाय और बच्चा क्या कह रहा है, पानी दे दो। ठीक है, अब देखें, अब आगे देखें, टेलीग्राफी मरहला। क्या है भाई, टेलीग्राफी मरहला। इस मरहला में बच्चे जुमले को बोलने के 2 से ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पहले तो एक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे बोलने के लिए कितने करते हैं, 2 से ज़्यादा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। जुमलों में आने वाले, क्या भाई, जुमलों में आने वाले से, को, पर वगैरह को बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। क्या है, जुमले में आने वाले को, पर, ने, ये सब क्या है, बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ज़ैनब का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा। क्या है, जुमला क्या है, ज़ैनब का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा, तो बच्चा क्या कहेगा, ज़ैनब भाई डब्बा बंद, ज़ैनब भाई डब्बा बंद, यानी ज़ैनब का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा। यानी अगर ज़ैनब का भाई उसने कहा कि मैंने तुझे डब्बे में बंद कर दूंगा आज, तो अब बच्चा ये नहीं कहेगा कि ज़ैनब का भाई मुझे डब्बे में बंद कर देगा, सिर्फ इतना कहेगा कि ज़ैनब का भाई डब्बा बंद, ज़ैनब का भाई डब्बा बंद। तो इस तरह वो बोलता है। इस मरहला में बच्चा बड़ों की तकलीद करता है और जुमलों को छोटा करके बोलता है। इस मरहला में क्या करता है, बड़ों की तकलीद करता है, यानी बड़ों की नकल करना बच्चा शुरू कर देता है और जुमला को छोटा छोटा करके बोलना शुरू कर देता है। जैसे ज़ैनब के भाई मुझे डब्बा में बंद कर देगा, तो बच्चा क्या बोल रहा है, ज़ैनब का भाई डब्बा बंद। ठीक है, अब देखें लंबे जुमलों का मरहला। ठीक है, वक्त के साथ बच्चों की लुगत में इजाफा हो जाता है और उनके जुमलों में भी अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। ये छठा मरहला है, आखिरी मरहला। इसमें बच्चे में क्या करते हैं, उनके जुमले में भी अल्फाज की तादाद बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, दिन ब दिन तो बढ़ते ही जाएंगे। जो सफ़र इस्म से शुरू हुआ था उस में क्या होता है, फ़ेल, ज़मीर, सिफत, जिन्स, मुतज़ाद और मुतरादिफ जुड़ने लगते हैं। मतलब जो सफ़र क्या होता है, जो स्टेज सिर्फ इस्म से हुआ था, पानी पानी पानी, पानी दे दो, ज़ैनब का भाई डब्बा बंद, मम, उससे पहले वाले में सबसे मैं कहा था मम, तो इस तरह से ज़बान शुरू हुई थी। अब उसके बाद आखिर में क्या हो गया, उसके बाद फेल भी इस्तेमाल कर रहा है, ज़मीर भी कर रहा है, सिफत भी इस्तेमाल कर रहा है, क्या विलम शब्द है, जिन्स, मुतज़ाद, मुतरादिफ, ये सारी चीज़ों को बच्चे इस्तेमाल करने लगते हैं, उनके अंदर ये सारे जुड़ जाते हैं। बच्चे की ज़बान तरसीली होती है। ठीक है, बच्चे की ज़बान तरसीली होती है, पहुँचने वाली होती है, पहुँचाने वाली होती है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इस मामले में तग़य्युर भी खूब पाया जाता है। मतलब ये नहीं कि जिस तरह बच्चे हैं उसी तरह रहे उनके ज़बान, मतलब इसमें उतार चढ़ाव भी पाया जाता है बच्चे की ज़बान में। ठीक है, अब देखिए, यानी तमाम बच्चे एक मुतय्यना उम्र में ज़बानी नशोनुमा में
यकसा नहीं हो सकते। यानी जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे की जो नशोनुमा है, बच्चे एक मुतय्यना उम्र में उनकी ज़बान की नशोनुमा, उनकी ज़बान की डेवलप एक साथ नहीं होता है, बल्कि किसी बच्चे के पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है, किसी का धीरे धीरे होता है। तो ये एक मुतय्यन वक्त में सारे बच्चे के ज़बान की नशोनुमा नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखें, ज़बान के पहली मराहिल तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया और पढ़ लिया। अब दूसरी मराहिल को देखते हैं। तब तक थोड़ा अपनी उंगली को जुम्बिश दीजिए और ज़रा सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रा मस कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब हो जाए तो मेरे को भला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छे नंबरात से आप कामयाबी हासिल करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरी ज़बान की आमोज़िश के मराहिल, यानी दूसरी ज़बान सीखने के मराहिल देखते हैं। अब ज़बान सीखने की दो सूरतें हैं। क्या है? ज़बान सीखने की दो सूरतें हाल हैं। एक क्या है? फितरी, और दूसरी क्या है? रस्मी। अब दोनों के डिफिनेशन देखते हैं, दोनों के तारीफ देखते हैं, तब पता चलेगा फितरी किसको कहते हैं और रस्मी किसे कहते हैं। चलिए देखिए, फितरी सूरत हाल में बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली ज़बानें खुद सीख जाते हैं। इस अमल में किसी का दखल नहीं होता। अमूमन अपनी मादरी ज़बान हम ऐसे ही सीखते हैं। इस अमल को ज़बान की तहसील कहते हैं। यानी फितरी ज़बान किसको कहते हैं? बच्चे आस पास में जो ज़बानें बोली जाती है उसे सुनकर बच्चे क्या करते हैं? इसमें सीख जाते हैं, और इस अमल में हमें किसी के सिखाने का दखल नहीं होता है। अमूमन अपनी मादरी ज़बान हम ऐसे ही सीखते हैं। इस अमल को ज़बान की तहसील कहते हैं। इस अमल को ज़बान की तहसील कहते हैं, यानी इक्तिसाब कहते हैं, यानी हासिल करना कहते हैं। इसमें बच्चे को सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बच्चे खुद अपने आस पड़ोस से सुनकर ज़बानें सीख लेते हैं, अपने घर वाले से सुनकर सीख लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गैर रस्मी ज़बान। इसी को फितरी सूरत हाल को हम क्या कहते हैं? फितरी सूरत में जो बच्चे ज़बान के इक्तिसाब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गैर रस्मी ज़बान का हुसूल। ठीक है, अब देखें रस्मी, ये तो फितरी हो गया। अब रस्मी सूरत हाल में ज़बान की बाकायदा क्लास होती है। यानी रस्मी सूरत हाल में रस्मी ज़बान को हमें सीखने के लिए बाकायदा क्लास करना होगा, स्कूल जाना होगा, मेहनत करना होगा, तब जाके हम क्या करेंगे? बच्चे क्या करेंगे? वो ज़बान सीख पाएंगे। उस्ताद होते हैं, किताबें और ज़बान सिखाने के दीगर वसाइल होते हैं। ठीक है, उसे ज़बान का सीखना कहा जाता है, और ये दूसरी ज़बान की सूरत में होता है। इसके दर्ज झेल 5 मराइल है। मतलब रस्मी तौर पर जो बच्चे ज़बान सीखते हैं इसमें क्या होते हैं? उस्ताद भी होते हैं, किताबें भी होती हैं, ज़बान सिखाने के दीगर वसाइल, दीगर ज़रिया भी होता है कि बच्चे को किस तरह ज़बान सीखना है, किस तरह सिखाया जाए, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती है, तब बच्चा रस्मी तौर पर ज़बान सीख पाता है। अब रस्मी सूरत हाल की, रस्मी की कितने मराहिल है? ये 5 इसके मरहले हैं। उसको हम लोग भी देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर समझ में आए तो भी कमेंट करके बताएं, और नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि इससे बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। ठीक है, अब देखें खामोश या तहसीली मरहला। ठीक है, पहला क्या है भाई? खामोश या तहसीली मरहला। इस मरहले में आमुज़गार नई ज़बान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की मश्क में वक्त सर्फ करता है। इस मरहला में अमली रवानी और समझ के साथ नई ज़बान में इजहार नहीं कर सकता।
खामोश या तहसीली मरहला में क्या होता है, इसमें आमुज़गार जो सीखने वाले बच्चे हैं ज़बान के अल्फाज को सीखने और नए अल्फाज को बोलने की, इसमें क्या करते हैं, ज़बान को सीखने और इसको बोलने के लिए नए नए ज़बान अल्फाज को मश्क करते हैं, इसमें वक्त लगाते हैं। इस मरहले में अमली रवानी और समझ के साथ नई ज़बान में वो समझ के साथ बच्चे ज़बान में इजहार नहीं कर सकते। खामोश में क्या इजहार करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस मरहले में अमली रवानी और समझ के साथ नई ज़बान में बच्चे क्या करते हैं, इजहार नहीं कर पाते हैं। इसमें सिर्फ नए ज़बान और अल्फाज को सीखने में अपना वक्त सर्फ कर देते हैं, अपना वक्त लगाते हैं। अब देखें इब्तिदाई तैयारी अर्ली प्रोडक्शन, ठीक है। इब्तिदाई तैयारी, इस मरहले में बच्चा नए अल्फाज को सीखने के साथ कुछ अल्फाज की अदायगी भी करने लगता है जो गुज़िश्ता सीखे गए अल्फाज से मिलकर बने होते हैं। फ्रेसेस मतलब बच्चा क्या आता है, अल्फाज और जुमला की अदायगी भी करने लगता है। इस मरहला में बच्चा नए अल्फाज के तो सीखने के साथ, पहला जो खामोश वाला मरहला था उसमें बच्चा सीख रहा था, लेकिन इस मरहला में नए अल्फाज सीखने के साथ साथ बच्चा क्या करता है, कुछ अल्फाज और जुमला यानी सेंटेंस, वाक की भी अदायगी करने लगता है जो गुज़िश्ता उसने जो जिस मरहले में सीखा है, सीखे गए अल्फाज से मिलकर बने हुए होते हैं। जो गुज़िश्ता अल्फाज सीखे हैं उसी से बने हुए अल्फाज उससे बच्चा बोलने लगता है, ठीक है। अब देखें उसके बाद वाला मरहला क्या है भाई, तकरीर की इब्तिदा, ठीक है। क्या है, तकरीर की इब्तिदा, तकरीर की शुरुआत। इस मरहले में बच्चे के ज़ख़ीरा अल्फाज में कई हज़ार अल्फाज जमा हो जाते हैं। इस मरहले में क्या होते हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज में बच्चे के मेमोरी में कई हज़ार अल्फाज क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वह उन अल्फाज को जोड़कर छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और अपनी दूसरी ज़बान से जुड़ने लगता है। इस मरहला में तकरीर वाली इब्तिदा वाली मरहला में क्या करता है बच्चा कि इसमें बच्चे में तो बहुत सारे ज़ख़ीरे अल्फाज जमा हो ही जाते हैं और इसमें बच्चा क्या करता है, अल्फाज को जोड़ जोड़ कर छोटे जुमले भी बोलने लगता है और इस ज़बान की वजह से दूसरी ज़बान से भी जुड़ने लगता है, अपनी मादरी ज़बान के बदौलत दूसरी ज़बान से भी जुड़ने लगता है। तो चलिए और देखते हैं इब्तिदाई रवानी क्या है। इब्तिदाई रवानी, जब आमुज़गार पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत करता है तो उसे रवानी की शुरुआत कहते हैं। बच्चा दूसरी ज़बान में सोचना और इजहार करना शुरू कर देता है। क्या है भाई, जब आमुज़गार पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत कर देता है, यानी पेचीदा जुमला बोलने की शुरुआत कर देता है और उसे रवानी, तो उसे क्या करते हैं, रवानी की शुरुआत कहते हैं, इब्तिदाई मरहला कहते हैं उसके। और बच्चा दूसरी ज़बान में सोचना और इजहार करना भी शुरू कर देता है। पहली ज़बान तो बोल ही रहा था, लेकिन बच्चा अब क्या करता है, इसमें दूसरी ज़बान में सोचना, समझना और उसको इजहार करना भी बच्चा शुरू कर देता है इब्तिदाई रवानी में। अब देखें पांचवा क्या है, रवानी। ये आखिरी मरहला है। क्या है भाई, ये आखिरी मरहला है। इसमें आमुज़गार मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ ज़बान की नमो करता रहता है। या आखिरी मरहला में बच्चा क्या करता है, इसमें आमुज़गार मुसलसल रवानी, समाजी तामुलात, समाज से मेल जुल अपनी ज़बान के ज़रिए बनाने लगता है। खालिसपन के साथ इसमें खालिस ज़बान बोलने लगता है बच्चा और ज़बान की नमो करता है और ज़बान को डेवलप करता है, नशोनुमा करने लगता है बच्चा इस आखिरी मरहला में। ठीक है, अब देख लेते हैं ज़बान की हुसूलियाबी और ज़बान की आमोजिश में क्या फ़र्क है। ज़बान के हुसूलियाबी मतलब फितरी तौर पर ज़बान को सीखना और आमोजिश मतलब कर के सीखना, स्कूल जाना, पढ़ना बाज़ाब्ता, तब जाकर आमोजिश हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या है इसको ज़रा समझ लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं भाई।
زبان کی حصولیابی اور زبان کی آموزش، ٹھیک ہے؟ تو زبان کے حصولیابی کے ذریعہ بچے اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر دسترس حاصل کرتے ہیں۔ یعنی زبان کی حصولیابی یعنی فطری زبان، غیر رسمی طریقہ میں بچہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پہلی زبان یعنی مادری زبان پر کافی مہارت حاصل کر لیتا ہے بچہ۔ اب دیکھیں زبان کی آموزش لفظ کا استعمال دوسری زبان سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ زبان کی آموزش لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے؟ دوسری زبان سیکھنے کے لیے زبان کی آموزش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان کو سیکھا جاتا ہے کس کے لیے؟ دوسری زبان کے لیے۔ پہلی زبان سیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، فطری طور پر بچہ اپنی مادری زبان کو سیکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں فطری طور پر زبان سیکھی جاتی ہے، زبان غیر رسمی اور غیر مستقیم طریقے سے سیکھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ اس میں فطری طور پر زبان سیکھ لی جاتی ہے، اس میں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں رسمی طور پر ہمیں بچوں کو زبان سیکھنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ غیر رسمی طور پر بچے زبان سیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں زبان کی آموزش میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں باقاعدگی کے ساتھ زبان کی قواعد اور اصولوں کو بھی سیکھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم کو دوسری زبان بولنا ہے، زبان کی آموزش کرنا ہے، زبان سیکھنا ہے، تو اس کے قاعدے کو بھی جاننا ہوگا، اس کے گرامر کو بھی جاننا ہوگا، اس کے اصول کو بھی جاننا ہوگا، تب بچے جا کر کیا کر پائیں گے؟ دوسری زبان کو صحیح ڈھنگ سے بول پائیں گے۔ اب زبان کی حصولیابی میں کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان زیادہ تر بچے اپنے گھریلو ماحول میں سیکھتے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل بچے گھریلو ماحول میں کیا کرتے ہیں؟ زبان سیکھ لیتے ہیں اور پہلی زبان سیکھتے ہیں جو ان کی مادری زبان ہوتی ہے۔ اب دیکھیں زبان کی آموزش، یہ زبان بچے رسمی طور پر استاد، کتب اور دیگر وسائل کے ذریعہ سیکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ زبان کی آموزش کس طرح کرتے ہیں؟ بچے رسمی طور پر اسکول جا کر یا استاد کے ذریعے یا کتاب کے ذریعے یا دیگر جو ذریعہ ہے پڑھانے کے، اس کے ذریعے بچے کیا کرتے ہیں؟ زبان کو سیکھتے ہیں زبان کی آموزش میں۔ اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہے؟ پہلی زبان کو سیکھنے میں ماحول دستیاب ہوتا ہے، وہ دوسری میں نہیں ہو پاتا۔ یعنی جو پہلی زبان سیکھنے میں ہوتا ہے، دستیاب ہوتا ہے، وہ دوسری میں نہیں ہوتا پاتا، کیونکہ مادری زبان بچے اپنے ارد گرد گھر اور آس پڑوس سے بچے سیکھ لیتے ہیں۔ دوسری زبان سکھانا ایک چیلنج بھرا کام ہے، کیونکہ اس میں پہلی زبان جیسا ماحول بچے کو نہیں ملتا۔ کیونکہ نہیں ملتا ہے کہ اس میں قواعد کا بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، اصول کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، تب بچہ دوسری زبان کو صحیح ڈھنگ سے بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی زبان بغیر سیکھے حاصل کیا جاتا ہے جو کہ مادری زبان ہے، اور دوسری زبان کے لیے ہمیں استاد، کتاب اور دیگر جو ذریعہ ہے سیکھنے کے، ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو آج کا کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔